Dear students, a very good fogful cold morning to all of you. Here I am Anjay Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Today in this morning, I would like to extend the topic that was one introduced last class, and I already have shown some pictures regarding this. And from this picture, here you can see in your book NCERT this picture, and from this picture there are many pictures in your book also. From these pictures you can get the idea about what about we are going to discuss. So last class I introduced the topic with some photographs of natural disaster such as flood, cyclone, earthquake, and you are very familiar in Bihar, especially in Patna district. Last year that was very sorrowful, that was very unfortunate for us because Patna was the highly infected by the affected by the floods, and that was due to the higher amount of water of Ganga river. So today in this morning, I would like to introduce this topic with the bad dream of Jasma. Here you can see, uh, help, help, save me, ah, oh. That means all those words are screaming sound and shouting everywhere. Such type of sounds when the people feels in danger, at that time they screaming with the words help, help, save me, ah, ooh. All these words you know about, because exclamatory word. Here you can see the exclamatory marks also. Help, help, save me. After all words, here you can see exclamatory mark. So you know about it. This was one the bad dream of Jasma. She was sleeping, and in her sleeping mode, in her mind, till that was happened 6 years ago, but that was highly affected. That highly affected their life, their culture. So that happening, that incident, that was very, वो उनके दिमाग में बहुत ही ताज़ा था, और उन्होंने सपने में देखा वही चीज़, जो कि जस्मा गुजरात की रहने वाली है, और वो 11 ईयर्स की थी जब वो इंसिडेंट गुजरात में हुई थी. तो इट वाज 26 जनवरी 2001. Everyone from the village, children and old people, had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. So you know about the 26th January. There are many things where we celebrate 26th January as Republic Day, and at that day we gather in school ground, in club, in front of club, and there are many places the people of India celebrate 26th January as Republic Day. And similarly, 2001 in Gujarat. Gujarat is also a state of India. So in Kutch area, Gujarat, those people were celebrating Republic Day with very enjoyable moments. But suddenly the ground was shaking. Earthquake, I already said about the earthquake. There are many type of disaster, natural disaster, but earthquake is very suddenly natural disaster. And when the earth shook, then we have very few time to alert, to be alert. So earthquake is very, and I can say most dangerous natural disaster, because this is very dangerous, because due to this there are many, you can see the pictures regarding this, many buildings collapsed, and many people died due to this. So in 2001, that was the very sorrowful, that was the very unfortunate incident for India. Suddenly the ground was shaking, people were scared and started running here and there. So this is very normal, this is very जनरल इशू, दैट जब अर्थ शेकिंग करना शुरू करता है दुनिया में,
जो भूमि है हमारा, जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, जिसके अंदर हमारे घर का नींव है, जिसके ऊपर पहाड़ है, नदियाँ हैं, सब कुछ हैं, वो अगर कांपने लगता है तो हमें डर तो अवश्य महसूस होता है। हम स्केयर्ड करते हैं, स्टेयर्ड करते हैं, रनिंग करते हैं हेयर एंड देयर। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन गेट द आइडिया अबाउट द इंसिडेंट व्हेन द इंसिडेंट हैपेंस, what type of what type of reaction you can see in those people here in this picture. Those people are running with their domestic animals, with their needy luggage, needy materials, and they are moving one side to another side very with very fearful moment, because this is very dangerous natural disaster. All about all of you know about it. No one knew what was happening and what to do. There was total panic very suddenly. So there was no previous alertness, there was no previous um, knowledge about it. So what was happening and what to do, that was the question. लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किधर भागेंगे. देर वॉज टोटल पैनिक. पैनिक दैट मीन्स वो आतंक में था, डर में था, भयभीत हो गया था कि क्या करें. तो आप इस तरह के कंटेक्स्ट को न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं. कभी कभी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हमारे हाथ में हर समय उपलब्ध है, जैसे कि टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट के थ्रू हम फेसबुक के थ्रू हर समय बहुत सारे न्यूज़ जो कि इंसिडेंट्स होते रहते हैं उसके बारे में पता करते रहते हैं. तो आप कहीं अर्थक्वेक या फिर फ्लड्स इस तरह का न्यूज़ देखेंगे तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसको आप महसूस कर सकते हैं. In a few minutes, our village was flat on the ground. All our things, clothes, pots, grains, and food were trapped under the stones, mud, and wood from the fallen houses. So, कुछ ही मिनटों में क्या हो गया था, गांव जो है फ्लैट हो गया ऑन द ग्राउंड. ऑल आवर थिंग्स, क्लॉथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स एंड फूड, जो नीडी थिंग्स होते हैं वह ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स. बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिर गया था, घर गिर गया था, तो स्टोन्स, मार्ड और वुड का बना हुआ होता है घर, तो क्या हो गया था, उससे ढक गया था सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि क्लॉथ्स हो, खाना हो, फूड ग्रेन्स हो. ऑल दोज थिंग्स वेर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स, मार्ड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस. At that time, everyone thought of two things: to save the people who were trapped and to treat the injured. So at that time, आपको भी यही सोचना है कि उस समय हमारा खाना कहाँ दबा हुआ है, कहाँ पानी दबा हुआ है, इसको बचाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं कोई प्राणी, जैसे कि इंसान हो, कोई जानवर हो, वो ट्रैप्ड हो करके दबा हुआ है कहीं स्टोन से, कहीं मार्ड से, कहीं लकड़ियों से, तो उसको देखना होता है. तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देते हैं जो रेस्क्यू टीम जाते हैं. मैं पिछले दिन रेस्क्यू टीम के बारे में भी बताया था, एनडीआरएफ के बारे में बताया था, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स. तो एनडीआरएफ इसमें काम करती है. बहुत सारे पैरामिलिट्री जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, मिलिट्री जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये भी बहुत काम करते हैं इस तरह की स्थिति में. तो टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड, जो लोग फंसे हुए थे और जो इंजर्ड थे, जैसे कि यहाँ इन दिस पिक्चर यू कैन सी इंजर्ड ह्यूमन एंड दिस वुमेन प्लास्टर ऑलरेडी हर लेग, एंड here you can see nearby the woman already domestic animal, dog, and the dog is also injured. So फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो होती है कि वहाँ ट्रैप्ड हो चुके कुछ इंसान और जानवर को बचा लेना और जो इंजर्ड है उसको ट्रीटमेंट करना. द विलेज हॉस्पिटल वाज आल्सो डैमेज्ड, हॉस्पिटल भी डैमेज हो चुका था. मैनी पीपल वेर सीरियसली इंजर्ड, बहुत लोग सीरियसली इंजर्ड थे, जो कि मतलब छोटा मोटा चोट नहीं था, ज़बरदस्त चोट लगा था. माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड, जस्मा की लेग भी आप देख सकते हैं फ्रैक्चर्ड होने से इस तरह का प्लास्टर किया जाता है. तो आप जानते होंगे इसके बारे में. चश्मा का
पैर भी फ्रैक्चर हो चुका था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स। गांव के लोगों की मदद से डॉक्टर्स आए थे, वहाँ कैंप किए थे और लोगों का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए थे। 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड। 6 लोग मर गए थे उनके गांव से। तो पूरे कच्छ एरिया से कितने लोग मरे होंगे? आप इसका इसके बारे में सर्च करेंगे। गुजरात के जो अर्थक्वेक हुआ था कच्छ में, उसमें कितने लोग मरे थे, कितने लोग, कितना नुकसान हुआ था, सारी चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो यहाँ जो जासमा के गांव के लोग थे उसमें से 6 लोग मर गए थे। माई ग्रैंडफादर नाना वॉज ऑल्सो वेरिड अंडर द हाउसेस। दबा गए थे। जबकि हम दादा बोलते हैं ग्रैंडफादर को, लेकिन यहाँ नाना कहा गया है। माई ग्रैंडफादर नाना वॉज ऑल्सो वेरिड अंडर द, मैटरनल ग्रैंडफादर को हम नाना बोलते हैं, तो वो भी दब गए थे उसमें। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, और उनकी मदर के पापा थे इसलिए वो बहुत ज़्यादा सीरियसली उसको लिए थे और बहुत ही रो रही थी। सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड। मम्मी को देख करके मुझे भी रोना आ रहा था। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब। तो आप भी देखे होंगे, आपके जब फ्लड्स आते हैं, यहाँ जब इन्फेक्टेड होता है, लोग मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, तो लोग कितने उससे विक्टिम्स फील करते हैं, कितना मजबूरी होता है, कितना डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होता है। तो इस कहानी के थ्रू हम आगे जो अर्थक्वेक की डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो नुकसान झेलना पड़ता है, विक्टिम्स के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। तब तक आपके लिए काम है कि आप इस तरह के न्यूज़ रिपोर्ट को कलेक्ट करेंगे, न्यूज़पेपर कटिंग, चाहे वो नेट से कलेक्ट करो या फिर कहीं से कलेक्ट करो। अब नेचुरल डिज़ास्टर का एक न्यूज़पेपर कटिंग ये करके उसका फ़ोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले करके आपको भेजना है और उसको पढ़ना है, पढ़ करके उसका स्क्रीनशॉट करके उसको भेजना है। आज के लिए आपका यही काम है कि प्रिंट मीडिया में, जैसे कि हमारे प्रभात खबर है, दैनिक जागरण है, ये सब न्यूज़पेपर में कटिंग्स आता है, छोटा छोटा न्यूज़ आता है, या फिर कहीं आग लग गया, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, आर्टिफिशियल कोई डिज़ास्टर हो, जहाँ के लोग विक्टिम्स होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं, बहुत सारे नुकसान हो जाता है, तो इस तरह के न्यूज़ को आप कलेक्ट करेंगे और उसको आज भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।